Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important MCQ for UPSC Prelims 2021. Already we discussed part 1 to 7. Now we are going to discuss about the part 8. Question number 71 to 80. Then let's start it. The first question is consider the following statement regarding the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board. Okay, PNGRB. Then it is a statutory body. Then it regulates the laying and expenditure of transmission pipeline for gas and petroleum and city local gas distribution network. It has power of civil court to settle dispute. Okay, which of the statement given above are correct? Then option 1 and 2, then B 2 and 3, then C 1 and 3, and D 1 2 and 3. Then all are correct. Okay. Then this one I am taking from current affair. Then look at here. Petroleum and Natural Gas Regulatory Board was constituted under the PNGRB Act 2006. Okay, the PNGRB Act provides for its establishment to protect the interests of consumer in entities engaged in specific activity relating to petroleum, petrol product, and natural gas, and to promote competitive market. Then here given that question number statement 2 also that correct. It laid down the technical and safety standard in related activity including the construction and operation of pipeline and infrastructure project related to downstream petroleum and natural gas sector. Okay, it secure equitable distribution for petroleum and petroleum product. Then statement 3 also correct. It will settle dispute between entity of related matter. Okay, the bench will have the same power as a civil court. Then this one is appellate tribunal established under the Electricity Act 2003 shall be the appellate tribunal for the purposes of this act. Then this one, and also you want to that PDF, then I will share this one. If you want this one, then you have to comment on the comment box, then I will give that PDF or share it on Facebook or otherwise the Telegram. Okay, then let's start it. Question number 72. Consider the following statement with respect to regional rural bank. Okay, RRB were set up as the regional based rural lending institution under the Regional Rural Bank Act 1976. They were established based on the recommendation of Rangarajan Committee Working Group. रंगराजन कमिटी नहीं था, नरसिम्हा कमिटी था. देन ये हम लोग का गलत होता है. देन RRB आर नॉट परमिटेड टू एसेस द liquidity window of the RBI like liquidity adjustment facility and marginal standing facility. Okay, then which one is correct? 1 and 2, 1 and 3 and 1 2 and 3. then हम लोग का दो गलत हो जाते हैं तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं. ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा. देन हम लोग का 1 ओनली बचता है, फिर 1 and 3 बचता है. तो कौन सा हम लोग का सही होना चाहिए? 1 ओनली. ओके, देन स्टेटमेंट 3 रॉन्ग. देन हम लोग का स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग हो जाता है. स्टेटमेंट ओनली 1 करेक्ट. ओके, ये देखिए स्टेटमेंट 2 हम लोग का क्या है? ये नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप का है, नरसिम्हा कमेटी का है. उसके बाद में स्टेट 3 में क्या है? स्टेटमेंट 3 में अब अनटिल नाउ RRB वर नॉट परमिटेड टू एसेस द लिक्विडिटी. ओके, वहाँ पे लिखा था परमिटेड टू एसेस द लिक्विडिटी, लेकिन ये परमिट नहीं करता है विंडो ऑफ द RBI से, और वेल एज द कॉल और नोटिस मार्केट. ओके, देन हम लोग का ऑप्शन ए जो था करेक्ट था. देन रीजनल रूरल बैंक है ये, और ये कब सेटअप हुआ था? 1976 में. कौन सा ये में? रीजनल रूरल बैंक एक्ट के तौर ये सेटअप हुआ था. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 73. Which among the following are among the primary and secondary objective of the National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem? Okay, then option 1 here, networking of knowledge institution engaged in study of Himalayan ecosystem. Second one, scientific assessment of the vulnerability of the Himalayan ecosystem, assessment of the
socio-economic and ecological consequence of global environmental change, studying of traditional knowledge system for community participation in adaptation and mitigation. Then below given which are correct, हम लोग का all are correct. Okay, then let's see this one explanation. All the given statements are among the objective of the National Mission for Sustainable the Himalayan Ecosystem. जो भी हम लोग का ऑप्शन अभी हम लोग देखें वो सब क्या है, नेशनल हिमालयन इकोसिस्टम में आता है हम लोग का. तो यहाँ पे देखिए 8 कोर है उसका मिशन का. ये फर्स्ट वन है हम लोग का सोलर मिशन है, फिर नेशनल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट है, फिर नेशनल वाटर मिशन है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज. ओके, देन ये हम लोग का 8 कोर हो जाता है जो हम लोग का नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल द हिमालयन इकोसिस्टम का है. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 74. विथ रेफरेंस टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये हम लोग का आजकल क्या है, जो हाई कोर्ट का जज के लिए जो ये कर रहा है, चल रहा है न्यूज़ में, अपॉइंट नहीं हो रहा है और ज़्यादातर क्या है एड होक जज ये किया जा रहा है. तो उसके लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया था कि जल्द से जल्द वो कॉलेजियम किया जाए ताकि वो जज को वो सेलेक्ट कर सके. तो उसके लिए मैं ये दी हूँ, उसका क्वालिफिकेशन क्या क्या होता है देख लेंगे. ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मस्ट नॉट लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज. तो ये क्या है, हम लोग का प्रेसिडेंट के लिए नहीं खड़ा हो रहा है, जो हम लोग का ये क्या है 35 ईयर्स उसका होना चाहिए. ये क्या है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के लिए. तो उसका क्वालिफिकेशन क्या है, एज नहीं दिखा जाता है बट उसका एक्सपीरियंस दिखा जाता है. ओके, देन हम लोग एक्सप्लेनेशन में डिटेल देखेंगे उसके बारे में. देन दूसरा क्या है, ये गलत हो गया हम लोग का 1. देन 2 हम लोग का क्या है, ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स और अनटिल ही अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर. देन ये क्या है, कोई भी मिनिस्टर नहीं है जो उसका क्या है टर्म होता है कि 3 ईयर्स या 5 ईयर्स हो या 6 ईयर्स हो. ओके, ये मिनिस्टर नहीं है हम लोग का, ये क्या है जज है. तो उसके लिए क्या है टर्म कोई भी मेंशन नहीं किया है, लेकिन वो 65 एज होने तक जितना भी एज है वो अगर वो सेलेक्ट हो जाता है ये के लिए जज के लिए, तो वो अपना 65 कंप्लीट करने तक वो जज बन के रह सकता है. देन थर्ड नंबर, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट. देन ये सही है. देन हम लोग का बी ऑप्शन सही हो जाता है. ठीक है, ओनली 3. देन स्टेटमेंट 1 रॉन्ग, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है उसका मिनिमम एज के बारे में, उसका क्वालिफिकेशन के बारे में दिखाया गया है. देन क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, देन दैट इज कंपलसरी. देन बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर का वो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में जज होने का. नहीं तो वो हाई कोर्ट में 10 ईयर्स का क्या होना चाहिए, एडवोकेट का एक्सपीरियंस उसका होना चाहिए, तब जाके वो बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज. देन स्टेटमेंट 2, ये भी क्या है, टेन्योर को फिक्स नहीं किया गया है. उसका टेन्योर क्या है, वो जब तक वो अपना 65 ईयर्स को कंप्लीट नहीं कर लेता है तब तक वो होल्ड कर सकता है ऑफिस में. देन स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, क्योंकि ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम दिस ऑफिस हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से वो रिमूव कर सकते हैं. और क्या है, प्रेसिडेंट कैन इशू द रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय पार्लियामेंट हैज़ बीन presented to him in the same session for such removal. ओके, देन पार्लियामेंट अगर बिल पास करते हैं उसके खिलाफ कि उसका कोई भी प्रॉब्लम है, देन वो उसे रिमूव कर सकता है, उसका ऑर्डर ये कर सकता है. एड्रेस अगर पार्लियामेंट करते हैं कि ये सेशन में इस ऐसे से रिमूवल कार्यक्रम होना चाहिए, देन वो लोग उसे देखते हैं. अगर वो मेंटली कोई प्रॉब्लम है उसका, देन जाके वो रिमूव हो सकता है. और दूसरा क्या है, द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय ए स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट. तो हम लोग का जो स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए ईच हाउस का, वो मिलने से वो ये कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को दे सकते हैं और प्रेसिडेंट वो ऑर्डर दे सकते हैं रिमूवल के लिए. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 75, विथ रेफरेंस टू कोल इंपोर्ट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. देन कोल के बारे में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा ही जाता है जैसे भी हो. मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट इन इंडिया आर कोल बेस्ड एंड दे आर नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ कोल विद इन द कंट्री.
Then second one, steel company need large quantity of coking coal which has to be imported. Which of the statement given below are correct? Okay. Then कौन सा correct हो जाता है हम लोग का? हम लोग का both are correct. Okay. देन हम लोग का ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. फॉर इंडिया कोल बेस्ड पावर अकाउंट फॉर अराउंड 60% ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी. ऑल्सो इंडिया हैज़ ह्यूज डिपॉजिट ऑफ हाई ग्रेड आयरन और हेयर कोल रिजर्व, स्पेशली हाई ग्रेड कुकिंग कोल फॉर मेल्टिंग आयरन और लिमिटेड. ओके. जो हम लोग का कोल का क्या में ज़रूरत होता है, ज़्यादातर हम लोग जो इंडस्ट्री, ये स्टील इंडस्ट्री, ये सब में ज़्यादातर हम इसको यूज करते हैं आयरन को मेल्टिंग करने के लिए और उसको कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए. देन मेनी स्टील प्लांट आर फोर्स टू इम्पोर्ट मेटलर्जिकल कोल. फॉर एग्जांपल स्टील प्लांट एट विशाखापट्टनम हैज़ टू इम्पोर्ट कोल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. ओके. देन विशाखापट्टनम में भी हम लोग का जो ये है स्टील प्लांट है, वहाँ पे भी जो कोल का यूज होता है वो कहाँ से मंगाते हैं? ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं. देन इसके बारे में डिटेल आप लोगों को चाहिए तो वो आप PDF ले सकते हो, देन वहाँ पे पूरा डिटेल मिल जाएगा. तो ये क्वेश्चन नंबर 76 देख लीजिए. विच अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ पेयर इज इनकरेक्टली मैच. ओके. फर्स्ट ये वाला हम लोग को जानना चाहिए इनकरेक्टली. कभी कभी क्या है हम लोग इनोसेंट वाला ये कर लेते हैं, एकदम सिली वाला मिस्टेक करते हैं. इनकरेक्टली और करेक्टली को ध्यान से नहीं पढ़ते, करेक्टली को टिक करके आ जाते हैं, जान के भी हम लोग का गलत हो जाता है. तो ये देखिए इनकरेक्ट है ये. ठीक है. तो हम लोग को इनकरेक्ट वाला ये करना है, सेलेक्ट करना है. देन आर्किपेलागो आजकल क्या है हम लोग का 2020 से लेके 2021 में बहुत सारा वोल्कानो हुआ है जो अलग अलग एरिया में हुआ है, तो उसके बारे में मैं दी हूँ. तो उसको आप लोग ये कीजिए कौन सा इनकरेक्टली मैच किया है देख लेते हैं. आर्किपेलागो द बेरेलिक आइलैंड एकदम करेक्ट है. देन बेस्टून तस्मानिया ये गलत है. देन वोल्कानिक आइलैंड कनारी आइलैंड सही है. कोरल आइलैंड मार्शल आइलैंड गलत है. तो ये हम लोग का क्या है, ये बी वाला सही हो जाता है. देखते हैं ऑप्शन दिया हुआ है क्या. हम लोग को गलत पूछा है तो बी हम लोग का गलत है, तो वही उस हिसाब से बी हम लोग का सही हो जाता है. ओके. तो ये देखिए हम लोग का बी हम लोग का सही है. तो ये क्या है, तस्मानिया इज ए वोल्कानिक आइलैंड और देयर वाज वोल्कानिक एक्टिविटी विया चेन ऑफ वोल्कानोज मिलियन ऑफ ईयर्स एगो. ओके. वो वोल्कानिक आइलैंड है वो अलग सा है. देन आर्किपेलागो ऑफ आइलैंड ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है. देन पेस्टन और आइलैंड एकर्स ये क्या है, उसका मेन लैंड ये है और क्या है ओलेटियन आइलैंड में है वो. ठीक है. ओके. देन 77 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट माइक. ओके. माइक दैट इज फुल फॉर्म मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट. बिकॉज ऑफ एलिफेंट बहुत सारे लोगों का जान भी जाता है. देन उसके डर से क्या है एलिफेंट को मार देते हैं, क्योंकि वो क्या है सडनली जंगल में घुस जाते हैं, खेती में घुस जाते हैं, किसी के घर में जाके लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं. देन उसके लिए बोल के क्या है बहुत सारे लोग भी मर रहे, देन एलिफेंट को भी मार दे रहे उसी की वजह से. देन इससे हम लोग का क्या है बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. तो उसको कैसे ये करेंगे उसके बारे में है. इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा. ओके. ये करेक्ट है हम लोग का. इट इज़ ए साइट बेस्ड सिस्टम डिजाइन टू monitor trend in the illegal killing of elephant to help range state make appropriate management and enforcement decision. Then the target number of mic site are in India. Okay. The largest number, तो हम लोग का इंडिया में लार्जेस्ट नंबर है और जितना भी स्टेटमेंट में पढ़ी वो ऑल आर करेक्ट है. तो डी हम लोग का ऑल आर करेक्ट 1, 2 and 3. ओके. देन मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट ये क्या है साइट से हुआ है 1977 में इस्टेब्लिश किया गया है. और ये क्या देखते हैं इसका मेन एम क्या है, टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर एलिफेंट रेंज स्टेट्स एंड द पार्टीज of site to make appropriate management and enforcement decision and to build institutional capacity within the range state of the for the long term management of their elephant population. The largest number of mic sites are in India, that is 13 country participating, but India is also largest number. Okay. Then question number 78. Which among the following statement with respect to the recently launched initiative
द फूड कोलिजन इज इनकरेक्ट, यहाँ पे भी आ गया देखिए इनकरेक्ट, ये ओके इसको ध्यान से देखना चाहिए। इनकरेक्ट और करेक्ट वाला में उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट क्या है धोखा खा जाते हैं या फिर सिली सा मिस्टेक कर लेते हैं कन्फ्यूजन में। ओके देन ये स्टार्टिंग करने से पहले और एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मैं, जो हमेशा करती हूँ, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए कोशिश कीजिए ताकि जिसको ज़रूरत है इसका उस तक पहुँच सके। क्योंकि आजकल क्या है कोचिंग ये सब लेने के लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जॉब छूट चुका है और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गया है। फिर वो लोग क्या है कोचिंग लेंगे तो वो लोग का क्या है रुपया बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग का कोई भी रुपया नहीं लगेगा इसमें, आप लोग शेयर करने का भी कोई रुपया नहीं लगेगा। अगर आप शेयर करते हैं तो उस तक जिसको बहुत ज़रूरत है ये चीज़ वहाँ तक पहुँच सकेगा। इसलिए आप लोग जैसे भी हो ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि शेयर करें, अपना फ्रेंड से या रिलेटिव के साथ शेयर करें ताकि जिसको ज़रूरत है उस तक भी पहुँच पाए। ओके देन यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 78 का जो इनकरेक्ट वाला हम लोग को देखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इट इज़ ए वॉलंटरी अलायंस दैट इंश्योर ग्लोबल फूड एक्सेस टू प्रिवेंट पोटेंशियल फूड क्राइसिस ट्रिगर बाय द कोविड-19 पेंडेमिक। ये सही है तो हम लोग का इनकरेक्ट ढूंढना है, ये करेक्ट है तो ये नहीं होगा। देन इट एम टू हेल्प कंट्री गेट बैक ऑन track to achieve the UN mandate sustainable development goal by 2030, especially the ones on ending hunger and poverty। ये भी एकदम से सही है। देन हम लोग का सी है इट फॉर्मेशन वाज proposed by India and is now led by the UN Food and Agriculture Organization। ये क्या है लीड कर रहा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बट प्रपोज कौन किया था इटाली किया था, इंडिया ने किया था। तो हम लोग का इनकरेक्ट ये हो जाता है। तो उस हिसाब से क्या है हम लोग का सी क्या है सही आंसर हम लोग को मिल गया इनकरेक्ट। ओके देन यहाँ पे ये देख लीजिए इट वाज प्रपोज बाय इटाली। ओके देन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इससे लीड कर रहा है। और कोविड-19 में जो बहुत सारा स्टेट ऐसे हैं, बहुत सारा काउंट्री भी ऐसे जो इंडिया को नहीं बाहर काउंट्री भी ऐसे हैं जिसको खाना पीना ये सब में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सब का प्रॉब्लम दूर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ओके देन क्वेश्चन नंबर 79 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द इंडेलिबल इंक यूज इन द इलेक्शन इन इंडिया। तो आजकल इलेक्शन हम लोग का लास्ट कुछ ही महीना पहले ख़त्म हुआ है। देन इलेक्शन के दौरान क्या करते हैं हाथ में यहाँ पे इंक लगाते हैं। देन वो इंक क्यों लगाते हैं वो तो आप लोग जानते हो कि वो एक निशान बन जाता है कि वहाँ ये इलेक्शन दिया है, दोबारा किसी और के नाम पे ना दे सके। लेकिन ये ज़्यादा लास्टिंग क्या करता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कैसे है इसका। द प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ द इंक इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। The ink lasts on the skin because of its exposure to the ultraviolet light। ये सही है, वो लास्ट भी करता है, बहुत दिन तक रहता है, मे बी किसी किसी का तो 1 महीना तक भी रहता है वो इंक। देन वो क्यों ऐसे करता है क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट से वो एक्सपोज होता है तो उसकी वजह से स्किन में वो लास्ट करता है। एंड द डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स यूज द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई द इलेक्शन इंक। ये गलत है तो हम लोग का सही आंसर क्या है 2 ओनली 2, ठीक है। और बाकी सब जो दिया है वो सब गलत है। ओके देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा। The ink typically contains silver nitrate which stain the skin on exposure to ultraviolet light. Ultraviolet light means sunlight, leaving a mark that is impossible to wash off and is removed over time as fresh skin cell replace the dead one। ओके देन हम लोग का स्किन सेल क्या होता है वो टाइम में रिमूव होते रहता है, डेड स्किन निकल जाता है, फिर न्यू स्किन आता है हम लोग के ऊपर। हम लोग को पता नहीं चलता है बट हल्का हल्का पतला सा होकर ये होता है निकलता है। तो ये क्या है हम लोग का डेड स्किन जब निकल जाएगा तो उस समय क्या है फ्रेश स्किन आने से वो स्किन का दूसरा पार्ट आएगा तो ये जो कलर है वो रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिक। और द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट वेरीज फ्रॉम 7% to 25% का होता है वो जो इंक में सिल्वर नाइट्रेट मिला हुआ रहता है 7 to 25% का। इट डज नॉट कंटेन कॉपर सल्फेट और इसमें कॉपर का कोई भी ये नहीं है, मिक्स नहीं है उसमें कॉपर सल्फेट का। और 3 नंबर क्या है दिस इंक इज सप्लाई बाय द मैसूर पेंट एंड वर्निश लिमिटेड। ओके कहाँ से हम लोग को ये इंक सप्लाई होता है मैसूर पेंट एंड वर्निश लिमिटेड से, एन अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का अंडरटेकिंग से है ये
गवर्नमेंट डाला है, स्टेट गवर्नमेंट। द MPVLs स्पेशलाइज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग इंडेलेबल्स इंक। ओके, तो ये हम लोग का क्या है, माइसर पेंटिंग एंड वर्निश लिमिटेड, ये स्पेशलाइज है सप्लाई करने का इंक जो हम लोग का इलेक्शन में यूज होता है। Okay, then question number 80, last one. In the context of active and passive immunity, consider the following statement: provision of ready-made antibodies to protect the body against the foreign agent is called active immunity. Okay, then हम लोग का second one, deliberately injection the microbes during immunization is an example of passive immunity. जो हम लोग का कोरोना का जो चल रहा है उसी के वजह से मैं ये दी हूँ। एक्टिव इम्यूनिटी टेक मोर टाइम देन पैसिव इम्यूनिटी गिव फुल इफेक्टिव रेस्पॉन्स। तो ये क्या है, गलत है। 3 नंबर हम लोग का 1 और 2 सही है, बट यहाँ पे क्या पूछा है, इनकरेक्ट वाला पूछा है। ठीक है, तो इनकरेक्ट हम लोग का कौन सा होना चाहिए, 3 नंबर हम लोग का होना चाहिए। ओके, देन हम लोग का देखते ऑप्शन है, हाँ ओनली डी। ओके, 3 ओनली इनकरेक्ट और बाकी सब हम लोग का ये है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाता है 3 ओनली। ओके, देन 1 and 2 आर रॉन्ग रेप्स डेफिनेशन। ओके, एक्टिव इम्यूनिटी इंजेक्ट द माइक्रोब्स deliberately during immunization or infectious organism gaining access into body during natural infection। और पैसिव का भी ऑलरेडी दिया हुआ है ये, तो आप लोग देख लेंगे। और अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं और भी अच्छा लेके आऊँगी करंट अफेयर बेस से। ये जितना भी मैं दी हूँ 1-2 को छोड़ के बाकी सब क्या है करंट अफेयर बेस है, तो आप लोग ये करेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या है, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकती कि यही क्वेश्चन आएगा, बट इसी क्वेश्चन से ही रिलेटेड आएगा आप लोगों का, इसी ऑप्शन में से या फिर इसी क्वेश्चन में से, क्योंकि ये सब करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। और इसका PDF भी चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगी इसे फेसबुक या टेलीग्राम में, तो उससे भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। ओके, देन 1 मोर थिंग, लास्ट वन। कल जो हम लोग का येस्टरडे जो हम लोग कल लाए थे ये का, उसका मैं अभी कल मैं मेमोरी ट्रिक लेके आ रही हूँ। जो येस्टरडे हम लोग का क्या था, ट्राइबल फॉक पेंटिंग था, उसका मेमोरी ट्रिक कल मैं लेके आ रही हूँ। फिर उसका नेक्स्ट डे में मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।